Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at your home in this tough time and are doing really well. So in today's video, we are going to discuss about class 10th Science NCERT chapter number 10, that is light, reflection and refraction. These are two important phenomena that are associated with the light. However, there are many phenomena that are associated with the light, but you will study those phenomena in the later classes. In 10th grade you need to just only study about reflection and refraction. These are two important phenomena that we need to study in the 10th grade, right? And this is going to be very first chapter of the physics, because according to Science NCERT it is chapter number 10, but if you are having any side book, then it is going to be the very first chapter of physics. And the first chapter of chemistry we have uploaded in the playlist on our channel. If you have not watched that videos, first chapter of chemistry, that was chemical reactions and equation, so please go to our channel, watch all the videos. I think 4, 5, 6 parts are available. I have uploaded complete chapter of chemistry. So after watching you can watch this video, because physics, chemistry, try to complete one by one chapter. First you need to complete the physics chapter. After that you can complete the chemistry chapter and then bio chapter. I'll be uploading each and everything about you, so please don't get worried. If you are associated with me, if you are connected with me, then there is no need to worry. We will give you free of cost content and each and every single content to you. जो भी आपकी बुक का सिलेबस होगा, जो भी आपका सिलेबस होगा, सारा कुछ अपलोड करेंगे. जो भी कुछ भी होगा, क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, सारा कुछ अपलोड करेंगे. प्लीज डोंट वरी अबाउट इट. जस्ट बी पेशेंस एंड keep learning with us and keep growing yourself. Okay, so without any further delay, let's start our today's video. In today's video we are going to discuss about light, very important thing, light and the some phenomena that are associated with light. So you must understand what is light first. So without defining, I just want to take you to the concept with the help of an activity. For example, if you are entering in a dark room, okay, if you are entering in a dark room, then will you able to see the things in the dark room? Dark room means whenever in the room there is no light, so we will not be able to see any things in that are present in the dark room. But if we are switching on, if the bulbs are switched on, then we will be able to check, we will be able to see all the things which are present in that room. Then do you think why this is so? We are having eyes. Many people I think you have studied about that we need for looking out the things, for seeing the things, we have eyes. Yes, of course, without the eyes no person can see. Okay, अगर आपकी आंखें नहीं होंगी तो आप देख नहीं सकते. So but eyes alone cannot see, अकेले eyes नहीं देख सकते. Then what they need a kind of energy that helps us to see the things around us. What is that energy? That energy is called as light energy. Okay, so light is what? Light is a form of energy which makes the things visible around us. जो भी आपके आसपास की चीजें होंगी उनको visible बनाता है light, right? And how do you know how it happens, how the light is coming? So how you are able to just look out at any object, whatever is the place in your surrounding, then how it is you are able to just look at those objects, how it is visible to you. So there are two kinds of objects. Certain objects are there which are emitting their own light. So whenever the light is getting from the object into your eyes, because your eye detects the light, आपकी आईज क्या करती हैं? लाइट को डिटेक्ट करती हैं. इन दैट केस, so whenever the light is coming into your eyes, then the object will be visible to you. Either if the object is not having its own light, then what it will do? It will simply reflect the light. Okay, it will simply reflect the light, and whenever the reflected light goes into your eyes, then you will be able to see that object. Is it clear? So the very first thing is, what is light? So we can say light is a form of energy which makes the things visible. Okay, which makes the things visible. Light क्या होता है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो चीज़ों को विजुलाइज करने में, चीज़ों को जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं. ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं. क्लियर हो गया? सो यहाँ पे लिखा हुआ भी है डेफिनेशन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द थिंग्स विजिबल. मीन्स विदाउट द लाइट वी कैन नॉट सी anything, even no matter we are having good eyesight, nothing.
even then we are having the okay, by having the eye alone, eyes alone cannot detect any kind of things. Alone eye without the light eyes cannot see anything. अगर आप अकेले डार्क रूम में जा रहे हो, वहाँ पे लाइट नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे. मैंने आपको एग्जांपल दिया. आपको क्या करना है, आपको एक डार्क रूम में जाना है. आपको पता है हम लोग दिन में देख पाते हैं, रात में क्यों नहीं देख पाते हैं? कभी आपने ऑब्जर्व किया है ऐसा? दिन में भी हमारे पास सेम स्ट्रक्चर होता है इसका, रात में भी सेम स्ट्रक्चर होता है. क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन के टाइम पे हम चीज़ों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि दिन में आपका लाइट नहीं होती है. जो दिन में सनलाइट, जिसकी वजह से हम जो दिन में लाइट होती है वो सनलाइट होती है. सन क्या करता है, लाइट एनर्जी को इमिट करता है और वो लाइट एनर्जी हमारी आइज़ में अप्रोच करती है, आइज़ में एंटर होती है, तब हम चीज़ों को देख पाते हैं. बट जैसे ही सनसेट होता है तो इवनिंग में क्या होता है, आपको सारी चीज़ें विजिबल नहीं होती. जैसे आप कहीं डार्क रूम में जा रहे हो या आप किसी ऐसे प्लेस पे जा रहे हो, यहाँ पे पूरा अंधेरा है, फुल डार्क है, तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, किसी लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. यू विल नीड लाइट सोर्स. अगर लाइट सोर्स नहीं है तो आप चीज़ों को नहीं देख पाओगे, राइट. तो लाइट सोर्स क्या हो सकता है, बहुत सारे लाइट सोर्स हो सकते हैं. बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकता है, टॉर्च हो सकता है. तो आपको क्या चाहिए, आपको किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है. विदाउट द लाइट सोर्स आप किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते. क्लियर है. और मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट्स कैसे आपको विजिबल होते हैं. या तो आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट एमिट कर रहे हैं, उनकी जो लाइट है, एमिटेड लाइट है, वो आपकी आइज़ में डिटेक्ट हो रही है. हमारी आई क्या करती है, लाइट को डिटेक्ट करती है. तो आपकी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनसे लाइट आपकी आइज़ में एंटर हो रही है, जैसे आपके सामने बल्ब है, तो बल्ब से जो लाइट आपकी आइज़ में एंटर हो रही होगी, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, बल्ब को देख पा रहे हो. या आपके सामने कोई एवीसी, जैसे आपका कुछ भी लगा है, एलईडी लगी हुई है, तो टीवी लगी हुई है, तो टीवी क्या करता है, टीवी से लाइट आपकी आइज़ में एंटर करती है, इसलिए आप टीवीज़ को देख पाते हैं. ठीक है. या फिर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती. जैसे आप CFL के एग्जांपल छोड़ दो, बल्ब के एग्जांपल छोड़ दो, तो वो कैसे आपको विजिबल होते हैं? वो क्या करते हैं, उनकी खुद की लाइट तो होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो उन पे फॉल होने वाली लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. क्या करते हैं, जो लाइट उन पे फॉल हो रही होती है, जैसे टेबल है, तो जो भी टेबल पे लाइट फॉल हो रही होगी वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा इनटू योर आइज. जो रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज में लाइट आएगी, तब वो आपको ऑब्जेक्ट क्या होगा, विजिबल होगा, राइट. I think the idea is clear. Why light is necessary? Light is very important. Without the light, nothing can be seen. No matter how beautiful eyes you are having. कितनी भी अच्छी आइज आपकी आई साइड हो या कितनी भी अच्छी आपकी आइज हो, बट विदाउट द लाइट आप नहीं देख सकते चीज़ों को. ठीक है. तो हमने क्या बता दिया, ये लाइट की डेफिनेशन क्लियर हो गई. लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो चीज़ों को देखने में आपकी हेल्प करती है, राइट. इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने डेफिनेशन, क्योंकि आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, सब कुछ इंग्लिश में लिखना पड़ता है, इसलिए. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द थिंग्स विजिबल. थोड़ा हिंदी इसलिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं. पर अभी क्या करना है, हमें सारा अपना जो कंटेंट है वो बहुत सारे बच्चों तक अप्रोच कराना है. तो ऐसा नहीं हो कुछ बच्चों को समझ आए, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए. हमारा जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको नहीं समझ में आता होगा, तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी भी यूज़ करेंगे, बाईलैंग्वेज कंटेंट रखेंगे आपसे. ओके. सो नेक्स्ट इज, I have told you that there are two kinds of object. There are two kinds of object. Some are emitting their light, some have their own light, and some objects don't have their own light. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे CFL हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए, जिनमें अपनी लाइट होती है, वो अपनी लाइट को इमिट करते हैं. ठीक है. और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते क्या हैं, क्या उनका नेम क्या होता है, उनको किस नेम से कॉल करते हैं? सो दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. ल्यूमिनस मीन्स लाइट हैविंग. ओके. ल्यूमिनस मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लाइट. सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी luminous means the objects which have their own light or which emit their own light are called as luminous object. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें अपनी खुद की लाइट होती है या वो अपनी लाइट को इमिट खुद की लाइट को इमिट करते हैं, उन टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस. जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, मैंने आपको लिखा भी होगा, सन हो गया, स्टार्स हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया. जितने भी ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, वो अपनी लाइट को इमिट करते हैं, उनकी लाइट डायरेक्टली आपकी आइज में एंटर करती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. क्लियर हो गया ल्यूमिनस क्या होता है?
दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस, वो भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। ओके, सो आई थिंक द आइडिया ऑफ लाइट इज़ वेरी क्लियर टू यू। क्या होता है लाइट, मैंने आपको बताया, एक्टिविटी भी करी अभी हमने। कौन सी एक्टिविटी करी कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, दिन में आपने देखा है आपको सारी चीज़ें विजिबल होती हैं। दिन के टाइम पे ऐसा क्या होता है जो आपको विजिबल होती है, रात में आप जाएंगे नहीं विजिबल होंगी। रात में भी सेम बॉडी है आपकी, रात में ऐसा तो नहीं है आपने आइज चेंज कर ली, कुछ नहीं होता। दिन में भी सेम स्ट्रक्चर है, सेम आइज थी, रात में भी सेम आइज। बट ऐसी कौन सी चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से आप दिन में चीज़ों को देख पाते हो और नाइट में नहीं देख पाते? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी। ऐसा नहीं नाइट में सब जगह नहीं, जहाँ पे लाइट होगी वहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे आप किसी रूम में जा रहे हैं, वहाँ पे बल्ब सारे ऑन हैं तो आपको दिखेगा। आप रोड पे जा रहे हैं, अगर स्ट्रीट लाइट ऑन है तो आपको दिखेगा। कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे लाइट नहीं होगी वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। दैट मीन्स लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो आपको हेल्प करती है चीज़ों को विजुलाइज करने में। Okay, so light is a form of energy which makes the things visible or which helps us to see the objects around us। जो आपके आसपास आपको चीज़ों को देखने में हेल्प करती है उसको हम बोलते हैं लाइट। क्लियर? आई हैव टोल्ड यू आवर आईज डिटेक्ट द लाइट। हमारी, अब आप बोलेंगे आईज का क्या काम है, ठीक है? तो आईज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आईज की वजह से ही आप देख पाते हैं। लाइट भी आपको चाहिए और आइज भी आपको चाहिए, ठीक है? आइज अलोन कैन नॉट सी द थिंग्स। अकेले आइज कुछ भी नहीं कर सकती, अगर लाइट नहीं है तो नहीं देख पाएंगी। ओके, बिकॉज आवर आइज डिटेक्ट द लाइट्स। So you know the light there are certain objects which are just having their own light like sun, stars. So the eye is just receiving the light of that object. eye क्या करती है? उन ऑब्जेक्ट की लाइट को रिसीव करती है, जिसकी वजह से वो चीज़ जो सोर्सेज उन्हें विजिबल होते हैं। आपने देखा है आपको सन बहुत क्लियरली विजिबल होता है। क्यों होता है सन क्लियरली विजिबल? क्योंकि आपकी जो आइज़ हैं वो सन से आने वाली लाइट को क्या कर रही हैं? डिटेक्ट कर रही हैं। आपकी आइज़ में डायरेक्टली वो एंटर कर रही है लाइट, सनलाइट, इसलिए आपको सन विजिबल होता है। स्टार्स आपको विजिबल होते हैं, क्यों? क्योंकि स्टार से लाइट सीधे आपकी आइज़ में एंटर करती है। आपकी आइज़ वो लाइट डिटेक्ट करेगी और ईजिली आपको विजिबल हो जाएगा। अगर आपकी आइज़ किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को डिटेक्ट कर रही हैं तो विजिबल होगा। अब मैंने आपको बताया सारे ऑब्जेक्ट्स में लाइट तो नहीं होती, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर अपनी लाइट नहीं होती। तो उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, स्टोन हो गया, ट्रीज हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। तो वो क्या करते हैं बेटा, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो अपने ऊपर फॉल होने वाली जितनी भी लाइट होती है उसको क्या करते हैं? इमिट करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं कैसे विजिबल होऊंगा? टेबल कैसे विजिबल होगी? अब जो आपके रूम में टेबल है, पहले लाइट आपका जो भी बल्ब होगा उससे टेबल पे जाएगी, टेबल से फिर रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज में आएगी, तब आपको टेबल विजिबल होगी। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट दैट हाउ लाइट मेक्स द थिंग्स विजिबल अराउंड यू। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, सो प्लीज take the screenshot. Either you can pause the video to make a note of it. Whichever the way suits you, you can use that one. Okay, I think you have taken the screenshot of the previous concept, that was luminous object. Luminous object means that the objects that have their own light or they emit their own light, like torch, bulb, sunlight, candle. Okay, all these objects having their own light, so that's why they are called as luminous object. Next concept will be non-luminous object. Non-luminous means the object that don't have their own light are called as non-luminous object. जिनके अंदर अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। आई थिंक इट इज क्लियर। जिनके अंदर खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट को इमिट करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। Example we have taken table, chair, book, trees, etc. All these objects don't have their own light. Table आपने देखा है उसके अंदर लाइट होती है? नहीं होती। चेयर होता है उसके अंदर भी लाइट नहीं होती। वो बल्ब की जो भी जिससे भी लाइट सोर्स से वो लाइट को क्या कर रहे होंगे? अप्रोच कर रहे होंगे या गेन कर रहे होंगे। जो भी लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही होगी उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे वो, ठीक है। जब रिफ्लेक्ट करेंगे तब वो आपकी लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो आपकी आइज में एंटर होगी और आपको टेबल या चेयर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो विजिबल हो जाएगा। ये क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। व्हाट दे डू? दे सिंपली रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट गोज इनटू योर आइज एंड
लाइट मेक्स द थिंग्स विजिबल। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी लाइट सोर्स, जैसे टेबल रखी है रूम में तो उस पर बल्ब वगैरह से लाइट क्या कर रही होगी, इंसिडेंट हो रही होगी, फिर जो लाइट होगी वो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी आइज में, तब आपको टेबल विजिबल होगी। क्लियर है? ऐसे ही जितने भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे सिंपली रिफ्लेक्ट द लाइट विच इज़ फॉलिंग ऑन देम, जो उनके ऊपर फॉल हो रही होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और जैसे ही वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आइज में जाती है आपको ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है। क्लियर है? दोनों ऑब्जेक्ट क्लियर हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आइदर यू कैन पॉज द वीडियो टू मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि कुछ हेल्प हो रही है वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आके वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, सारा सिलेबस अपलोड करेंगे, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का सारा सिलेबस अपलोड करेंगे। अभी थोड़ा सा बीच में ग्लिच हुआ था, इस वजह से वीडियो डिले हो रही है, तो आप रोज़ डेली अपलोड करेंगे वीडियोज़ को। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इन वीडियोस का फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियोस अवेलेबल हैं इनका बेनिफिट ले पाएँ। राइट, सो देखते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होता है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्कशन फोरम। वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करते ही आप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे, और फिर जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं किसी भी क्लास का आप पूछ सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, सो जस्ट वेट। Okay, I think you have taken the screenshot of the previous concept, that was non-luminous object. Now we need to discuss one of the important phenomena, that is reflection of the light. What is reflection? We are again and again we are using the word reflect or reflects. What is that reflection means exactly? So reflection means whenever we are incidenting or whenever we are falling a light rays on any of the smooth object or any of the object, and if the object sends back these incident rays or these rays into the same medium, then this process of sending back of light rays by the object is called as reflection of light. क्या होता है एक बार फिर से देखते हैं. Okay, if light rays or light is incident on any of the object, and if that object sends back those light rays, then this process of sending back of light by the object is called the reflection of light. Right? क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप क्या कर रहे हो, उस पर लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो, लाइट रेस को फॉल कर रहे हो, अगर वो ऑब्जेक्ट वापस उन लाइट रेस को क्या कर रहा है, वापस सेंड कर रहा है, तो ये जो लाइट रेस को वापस सेंड करने की जो प्रोसेस है ऑब्जेक्ट से, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं. क्लियर है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच आर फॉलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज reflection of light. There are various definition available. If you are using NCERT, then you will get a different definition. If you are using SC Verma, then you will get a different definition. So definition can be created by your own. आप अपने words में भी create कर सकते हो. Like the process of bouncing back of light when it strikes on a smooth surface, it is also called as reflection of light. बहुत सारे definitions हैं, multiple definitions are there. But you must get the concept. After getting the concept, you can simply create your own definition. Okay, so this is very simple definition I have written. If you know, if you want to make some modification that, then you can do. It's your choice, because you should be creative with your studies. ऐसा नहीं कि जो teachers ने आपको बताया बस उस पर पढ़ने में लगे हुए हैं. No, teacher is correct. However, no problem. Teacher is telling you best thing, but you can do some creativity. You can find out some new definition, whichever suits you, which are easy to you. Okay, that's why. So the process of sending back the light rays which are falling on any object is called as reflection of the light. Very simple. Right now we have taken an object, that is mirror. Mirror, do you know?
आई थिंक लुकिंग मिरर यू हैव सीन, लुकिंग मिरर और ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेन मिरर। जो फेस मिरर होता है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लुकिंग ग्लास, आइदर वी कैन कॉल इट फेस मिरर। ओके, मिरर यू नो मिरर हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी, इट हैज अ स्मूथ सरफेस। इसमें क्या होता है, एक स्मूथ सरफेस होता है, शाइनी होता है वो बहुत ज़्यादा, एंड ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर देयर इज अ पॉलिश, देयर इज अ पॉलिश्ड सरफेस। एक साइड में क्या होता है, स्मूथ होता है, दूसरी साइड में क्या होता है, पॉलिश होता है। सो व्हेनेवर वी आर इंसिडेंटिंग द लाइट ऑन द स्मूथ सरफेस, देन व्हाट डज द स्मूथ सरफेस डू, स्मूथ सरफेस सिंपली रिफ्लेक्ट्स द लाइट और सेंड्स बैक द लाइट इनटू द सेम मीडियम। जहां से लाइट आ रही थी उधर ही वो उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे मिरर है, ये रे हमने इंसिडेंट करी है और ये मिरर क्या कर रहा है, लाइट रे को वापस उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बैक में सेंड कर रहा है या फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है। दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो भी लाइट इस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो भी है मिरर है, ये क्या कर रहा है, इस लाइट को, इंसिडेंट लाइट को सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वापस सेंड कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, आई थिंक इज इट क्लियर क्या होता है रिफ्लेक्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत इजी है पर इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। ओके, सो रिफ्लेक्शन इज व्हाट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट विच आर फॉलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होने वाली लाइट रेज को वापस उसी मीडियम में सेंड कर देने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हमने एक सरफेस लिया है, प्लेन सरफेस लिया है, और ये आपका मिरर है। मिरर, डू यू नो व्हाट इज मिरर, मिरर इज अ स्मूथ सरफेस, इट इज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। एक साइड में स्मूथ होता है, चिकना होता है बहुत, और एक साइड में क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ओके, दिस इज अ सिंपल प्लेन मिरर। So whenever we are incidenting the light rays on the plane mirror, then what is happening? Check it out. This mirror is sending these light back into the same direction और सेम मीडियम, जहाँ से आप सेंड कर रहे हो उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। यू कैन डू एट योर होम, टेक द सिंपल मिरर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, आई एम जस्ट ओके, दिस इज अ मिरर, एंड इफ यू आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मिरर, ओके, दिस इज अ प्लेन मिरर एंड हैज अ स्मूथ सरफेस। मिरर्स में क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ। एंड नाउ वी नीड टू डिस्कस, एंड आफ्टर इन द क्लासरूम वी नीड टू डिस्कस सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स ऑल्सो। आपको आगे मिरर्स भी पढ़ने हैं कि कौन कौन से टाइप के मिरर्स होते हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। दिस इज in this you need to study only about the plane mirrors, right? For example, this is a plane mirror, and if you are just having a torch in your hand, so if you are just putting the if you are just putting the you are incidenting the light from the torch, आप टॉर्च से लाइट इंसिडेंट करोगे तो ये प्लेन सरफेस क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, जस्ट वी आर सेंडिंग द लाइट, एंड आफ्टर दैट whenever the light will strike this surface, then this will reflect in the same direction. This process is called as reflection. I think the idea is clear to you. Okay, so this is all about the concept of reflection. Please take a screenshot of it, either you can take the parallel notes. Okay, so just write down all the things very carefully, and after that we will be discussing some new concept. Okay, so students, this is all about your today's video, and if you are just enjoying this video and if you like this video, then please hit the like button. If you are new to our channel and watching the video for very first time, then please subscribe to our channel and also press the bell icon and do all. Whenever we are uploading a new video, then you will get the notification for that. And please, I would like to request you, please share this video as much as possible. Wherever you are connected on the WhatsApp, you are connected on the social media platform, Facebook, Instagram, please share there, because we want more audience and more support from you guys. And thank you so much all of you for watching this complete video. Thank you so much.